Hello students, today I am going to discuss the exercise 5.2. Some questions I am going to take from this exercise. In last video I have discussed the formulas of derivatives. I have written here one question here, 2 under root cot x square. How can we differentiate it? At first I assume that y equal to 2 under root cot x square. Then dy by dx equals 2 dy dx of under root cot x square, then dy dx of cot x square, then dy dx of x square. This is the chain rule. Then 2 upon under root cot x square, differentiation of this term. Cot is minus cosec square x square, then 2x. 2 and 2 are cancelled by each other. Now we have remaining minus 2 cosec square x square over into x as well as here, and then under root cot x square. We can minimize this one also. How can we minimize this expression? Minus 2 over sin square x square into x over under root cos x square over sin x square. This is also in under root. So minus 2 over sin square x square into under root sin x square over under root cos x square. Minus 2 under root sin x square. We can write this one as sin x square into under root sin x square into under root sin x square into cos x square. Now this and this cancelled by each other. Multiplying both numerator and denominator by under root 2. Now it becomes, here also x we have. Two sin x square cos x square. It is minus 2 under root 2x over sin x square. This is the identity of under root sin 2x square. This is your answer. Now pause the video and note it down. Now the next question, fx equal to modulus x minus 1 is not differentiable at x equal to 1. ये आपको प्रूव करना है. कैसे हम प्रूव करेंगे? पहले हम LHD निकालेंगे. LHD के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया है क्या होता है. LHD जब हम फाइंड आउट करते हैं तो f डैश x की जो वैल्यू होती है वो होती है fx माइनस fc ओवर माइनस h. तो अगर इस कॉन्सेप्ट से ओवर x माइनस c, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें तो f डैश x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव. ये है फंक्शन आपके पास x माइनस 1, तो ये माइनस में ओपन होगा क्योंकि लेस देन 1 के लिए है. माइनस fc 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ओवर x माइनस 1. सॉल्व करने पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये माइनस 1 आ गया. फिर आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है वही है fx अपॉन fc ओवर x माइनस c अगेन. लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x माइनस 1 माइनस 0 ओवर x माइनस 1. कट करेंगे 1 आएगा. इस तरह से हम देखेंगे कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो इट इज नॉट differentiable at x equal to 1. Now pause the video and note it down. Now the next question, fx equal to greatest integer function x is neither differentiable neither continuous nor differentiable at x equal to 2. This is the last question of your exercise. Now at first we are going to prove this is not continuous at x equal to. How can we prove it? Left hand limit I am going to take. Now limit s tends to 0 negative, and it is now becomes 2 minus h minus 2 minus h, greatest integer function 2 minus h becomes 2 minus 1, it is 1,
and then limit s tends to 0 positive 2 plus h and it is 2. So this is LHL and this is RHL. LHL is not equal to RHL, so not continuous at x equal to 2. Then for differentiability, how can we prove it? First LSD. LSD means, again I am going to take the concept here, limit s tends to 0, greatest integer function 2 minus h minus again 2 over minus h. Now it is limit s tends to 0. It is 2 minus 1 minus 2 over minus h. Now it comes infinite. And then RSD, right hand derivative. Again limit s tends to 0. 2 minus h minus 2 over h. Now limit s tends to 0, 2 minus h. Two minus h means it is 2 minus 2 over h. It becomes 0. So LSD is not equal to RSD. So it is not differentiable. It becomes 2 plus h, not 2 minus h, 2 plus h. It is not differentiable at x equal to 2. Now pause the video and note it down. Now इम्प्लिक्ट फंक्शंस. इम्प्लिक्ट फंक्शंस क्या होते हैं? ये कोई नई चीज नहीं है हमारे पास. देखिए इन जनरली इससे पहले एक्सरसाइज में जो हमने किया, हमसे कहा गया डिफरेंशिएट sin x इंटू कॉस एक्स. तो हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किया. यानी सिंगल वेरिएबल था, उसी के रिस्पेक्ट में आप उसको क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे. अब यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करके किसी एक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैं आपकी बुक से एक क्वेश्चन ले रहा हूं. जैसे आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो सीधी सी बात है, यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y भी यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए ये भी डिफरेंशिएट होगा. लेकिन ये कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप एक साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो एक नया एक्सप्रेशन, एक नया फंक्शन आप फाइंड आउट करेंगे जिसको क्या कहा जाएगा, इम्प्लिक्ट फंक्शन कहा जाएगा. फर्क है दोनों में. अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसमें कोई नया एक्सप्रेशन नहीं होगा, सीधे डिफरेंशिएट हो जाएगा, 6x प्लस 2 आ जाएगा. कोई नया फंक्शन हमको फाइंड आउट नहीं होगा, कोई नया एक्सप्रेशन फाइंड आउट नहीं होगा. लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, अगर हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. तो ये 2 इंटू 1 आ गया, ये प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफरेंशिएट होगा नहीं, और ये आ गया कॉस एक्स. तो 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया कॉस एक्स माइनस 2, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया कॉस एक्स माइनस 2 ओवर 3. तो ये जो एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट हुआ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3, ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन कहते हैं. यानी सिंपली, जाहिर सी बात है, अगर हमें इम्प्लिक्ट फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम कहेंगे किसी भी ऐसे फंक्शन को इम्प्लिक्ट फंक्शन कहा जाता है जिसमें 2 वेरिएबल्स को यूज किया जाता है, एक डिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर हम डिफरेंशिएट करके एक नए फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं जो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में होता है, उसे इम्प्लिक्ट फंक्शन कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास एक्सरसाइज 5.3 में इसी तरह के डिफरेंशिएशंस हैं, और आप लोग इसको कर सकते हैं. मैं एक आध क्वेश्चन इसमें देख रहा हूँ, अगर कोई जो नहीं कर सकते हैं या कोई ऐसे कोई टफ क्वेश्चन है तो उनको मैं
करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसमें ऐसा लगता नहीं मुझे कि कोई आपको इस तरह के कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं बात करूं, आपको 9th क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। ये एप्लीकेशन आप लेसन नंबर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर चुके हैं। बिल्कुल उसी अप्रोच से इसको सीधे डिफरेंशिएट नहीं करना है। इसमें आपको कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कहीं पर आएगा तो इसे -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कहीं पर आएगा तो इसको 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जैसे कोसेक सेक, ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखी हैं। 3 मेन आइडेंटिटीज मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की लिख दी है। अब इसको करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा एज्यूम करेंगे और यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, sin 2 थीटा को। ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास y इक्वल टू क्या है, 2 थीटा, और यहाँ थीटा को आप tan इनवर्स x लिख देंगे क्योंकि यहाँ से थीटा आपने फाइंड। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ आपको दे रखा है 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ तक का काम तो आपने लेसन नंबर 2 में किया है। इसके आगे आप थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें इसी तरह के आपको क्वेश्चन दे हैं। होप सो आप इस एक्सरसाइज को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा। थैंक यू टू ऑल।